Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about System International Unit. As we see that in past the system of unit of one country was different from the other country. However, in the middle of last century, an international committee agreed on a set of units to measure physical quantity. The set of unit is called System International Unit. It is abbreviated as SI, System International Unit. This system is now used throughout the world. Its units are convenient for daily life use. The scientists particularly prefer this system for the exchange of scientific researches and information with world in scientific communities. We also discuss student some of the derived quantity like how area, volume of liquid, volume of solid and density are derived quantity. We see that according to that formula area is equal to length multiplied by width, and we know that length and width can be measured into meter, and so that's why we can say that it come from base quantity, that's why it is derived quantity. All these units like volume of solid, volume of liquid, we can prove that these are derived quantity. We also discuss student System International Unit in our daily life, like we use meter. What is meter? We use meter in a unit of measurement of length. We also use in our daily life kilogram. What is kilogram? Kilogram is used for the measurement of mass of different things. And cubic meter is the SI unit of volume. We use liter instead of meter cube in our daily life. And second, we also second is the unit of time, which is 1 by 86,400 part of mean solar day. So this is all about the main points of previous lecture. Now student, in this lecture we discuss about the most important topic, that is called prefixes. What prefixes? What is prefixes? स्टूडेंट, प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस आपके पास वर्ड या लेटर होते हैं. क्या होते हैं? वर्ड या लेटर होते हैं जो कि आपके पास यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होते हैं इसके पहले लिखे जाते हैं. फिर बता देता हूँ, प्रीफिक्सेस आपके पास वर्ड या लेटर होते हैं जो कि आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, और इनकी वैल्यू जो होती है बच्चों, द वैल्यू ऑफ दिस प्रीफिक्सेस, या तो ये मल्टीपल टेंस होते हैं या सब मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं. क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ दिस प्रीफिक्सेस आर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10. या तो 10 होती हैं या 10 के भी मल्टीपल्स होती हैं. हम आगे देख लेंगे जी, आपको ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल क्लियर हो जाएगा. सो वर्ड प्रीफिक्सेस को सबसे पहले आपने डिफाइन करने. प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. द वैल्यू ऑफ दिस प्रीफिक्सेस आर मल्टीपल्स and sub multiples of 10. Is that clear? Now come to the use of prefixes. Prefixes are used for the interconversion of smaller and bigger unit. छोटे और बड़े यूनिट को आपस में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज. छोटे और बड़े यूनिट्स को एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका है, या हम छोटे या बड़े यूनिट को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. आई होप यूज़ भी आपको क्लियर हो चुकी है. सबसे पहले प्रीफिक्सेस, आपके पास कुछ वर्ड या लेटर होते हैं जो ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के पहले लगाए जाते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? छोटे और बड़े यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और छोटे और बड़े यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. चलिए देख लेते हैं प्रीफिक्सेस एक्चुअली होते क्या हैं. बच्चों, आपके पास
ये कुछ वर्ड्स हैं, प्रीफिक्सेस को कुछ वर्ड्स से शो करते हैं, लाइक एक्सा, ई एक्से, दैट इज़ व्हाट प्रीफिक्सेस, ये इनके फैक्टर हैं और ये इनके सिंबल हैं। ठीक है, तीनों को आपने याद रखना है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डीसी, सेंटी, ये इनके नाम हैं बच्चों। आपने इन सब को याद रखना है। ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 तक मैंने लिखे हुए हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 99 पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें सारे प्रीफिक्सेस शो किए हुए हैं, तो आपने वो सारे क्या करने, सारे याद रखने हैं। तो सारे मेरे साथ आप एक रिपीट कर सकते हैं, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डीसी, सेंटी। सेंटी के बाद आपकी बुक में आते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, आटो तक हैं। ठीक है, 5-6 मुझसे रह गए, तो आपने वो भी क्या करने, बुक से देखकर याद रखने। अब एक्सा का वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब है 10 की, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 10 की पावर 18। अब 10 की पावर 18 को लेट सपोज आप किसी भी वर्ड के साथ एक्सा लिख लें तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर 18। आपने एक बड़े यूनिट को एक छोटे यूनिट्स के अंदर इजीली क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। पेटा का मतलब है 10 की पावर 15, इसी तरह टेरा का मतलब है 12, गीगा का मतलब है 10 की पावर 9, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, किलो का 10 की पावर 3, और इसी तरह आएंगे तो डेका का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 1, डीसी का मतलब 10 की पावर -1 एंड सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, और ये इनके सिंबल आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं। हम इनको यूज़ किस तरह करते हैं, मैंने ये तो कह दिया कि आपके पास स्मॉलर और बड़े यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। अब यूज़ किस तरह करते हैं, किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा कि किस तरह छोटे और बड़े यूनिट को हम इससे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, कन्वर्जन, जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा, किलो का मतलब क्या था, अभी मैं फिर बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास किलो था, देख सकते हैं आप, किलो का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 होता है या नहीं, यस 1000। किलो, किलो मीन 1000, क्लियर है। किलो वर्ड, किलो इज वर्ड, किलो इज प्रीफिक्स, जिसके मतलब क्या है, जो किसको डिनोट करते हैं, 1000 को। सेंटी, सेंटी, सेंटी हमने ज़रा पहले देख लिया टेबल में, सेंटी का मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 100, 100 पार्ट, 100 में से एक पार्ट, क्लियर है। या इसको हम लिख सकते हैं 100 को ऊपर लेके जाएं क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2, और इसको इस टेबल में हमने यहाँ किस फॉर्म में लिखा था, सेंटी का मतलब यहाँ होगा सेंटी सबसे लास्ट में, 10 की पावर -2। सो दिस इज व्हाट प्रीफिक्स। किलो इज आल्सो प्रीफिक्स, सेंटी इज आल्सो प्रीफिक्स। मिली, मिली इज 1 पार्ट आउट ऑफ 1000, सो 1000 में से एक पार्ट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, मिली। 10 की पावर इसको ऊपर लेके जाऊं, 1000 को ऊपर लेके जाऊं क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। सो इसका प्रीफिक्स जो आपको टेबल में गिवन था, 1000 को 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 की फॉर्म में लिखा था, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में वो है आपके पास। ठीक है, 1000 10 की पावर -2, या इसको 10 की पावर 3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, इस तरफ लिख सकते हैं। चले आते हैं ज़रा कन्वर्जन की तरफ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जहाँ कहीं भी आपके पास प्रीफिक्स किलो का वर्ड यूज़ होगा, याद रखिएगा मेरी बात, वेन एवर द वर्ड प्रीफिक्स किलो इज एडेड बिफोर SI यूनिट, जब कभी भी किसी भी यूनिट से पहले किलो का वर्ड यूज़ होगा तो आपने उस यूनिट से पहले बच्चों 1000 लगाना है, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 1000 होता है। वेन एवर prefix kilo is added before any unit, so you use 1000 before that unit. Is that clear? जब कभी भी आपके पास किसी भी यूनिट से पहले आपके पास
किलो का वर्ड यूज़ करें तो उस किलो के बजाय आप उसकी जगह 1000 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर, मीटर आपके पास क्या है, मीटर इज़ अ यूनिट। व्हाट, मीटर इज़ अ यूनिट, उसके आगे लिखा हुआ है किलो, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं या नहीं। 1 किलो किसके बराबर होते हैं, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 एंड मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, अगर आपको किसी भी यूनिट से पहले सेंटी का वर्ड लिखा हो तो सेंटी की वैल्यू आप 10 की पावर -2 उस यूनिट से पहले ऐड कर सकते हैं। फिर बताता हूँ, वेन एवर द वर्ड सेंटी इज यूज बिफोर एनी यूनिट, सो इट्स मीन दैट you should add 10 की पावर -2 बिफोर दैट यूनिट। जैसा कि 1 सेंटीमीटर, मीटर इज अ यूनिट, मीटर से पहले सेंटी लिखा हुआ है, तो सेंटी की वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। सेंटी की वैल्यू होती है 1 आउट ऑफ 100, या इसको 100 को, या इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखें 10 की पावर -2 मीटर, 1 आउट ऑफ 100 मीटर या 10 की पावर -2 मीटर। सिमिलरली अगर वर्ड मिली किसी भी यूनिट से पहले लिखा हो तो इसका मतलब है 10 की पावर -3 या 1 आउट ऑफ 1000 पार्ट। यहाँ मीटर यूनिट है, यूनिट से पहले मिली लिखा हुआ है, तो मिली के यूनिट वैल्यू पुट कर दें। मिली इज अ प्रीफिक्स द वैल्यू ऑफ मिली इज 1 डिवाइड बाई 1000, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 की पावर -3। I hope it is clear now. Now student, this is a little bit about introduction of prefix, their uses and how we can convert one unit to another by using prefix. So student, now come to the next topic, that are instrument of measurement. What instrument of measurement? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले हमारे पास वी यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटी। सम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर गिवन बिलो, लाइक मीटर रूलर। मीटर रूलर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मीटर रूलर जिसको आप स्केल कहते हैं बच्चों, स्टूडेंट आपने तो मोस्टली यूज़ करते हैं लाइनें वगैरह लगाने के लिए, मोस्टली हम तो लाइनों लगाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डेली लाइफ में इससे मुख्तलिफ़ चीज़ों की लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो मीटर रूलर इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूलर को हम यूज़ कर सकते हैं। मीटर रूलर हैज़ 1000 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। एक मीटर रूलर जो होता है उसके अंदर 1000 स्मॉल डिवीजन होती हैं, या 1000 स्मॉल डिवीजन कंबाइन होके एक आपके पास क्या बनाते हैं, मीटर रूलर बनाते हैं। अब मीटर रूलर जो होता है स्टूडेंट, वो स्मॉल डिवीजन को बच्चों कहते हैं मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मीटर रूलर। एंड थर्ड पॉइंट, मीटर रूलर कैन measure the length of body correctly up to 1 millimeter। आपके पास कोई भी एक बॉडी है, अबाउट 1 मिलीमीटर तक की एग्जैक्ट करेक्शन आप इससे कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ आप इससे मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिवीजन जो है आपके पास 1 मिलीमीटर तक गिवन होती हैं। इससे छोटी यूनिट आपके पास गिवन नहीं होती। सो व्हाट इज मीटर रूलर? मीटर रूलर इज a scale which is used to measure the length of an object. Meter ruler has 1000 small division called millimeters. Meter ruler can measure the length of body correctly up to 1 millimeter. The meter ruler is shown in figure 8.4 on your book, page number 99. You can see the figure of meter ruler. Okay, now second
measuring instrument are measuring cylinder. measuring cylinder बेसिकली डायग्राम से, तो जैसे कि आपको ये measuring cylinder की मैंने आपको डायग्राम बताई हुई है, होता है इस शेप पे। और measuring cylinder हम लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? measuring cylinder is used to measure the volume of liquid. किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम measuring cylinder को यूज़ करते हैं। या तो ये प्लास्टिक से बनाया जाता है, या ये आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर एक स्केल से रीडिंग लिखी जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। स्केल से रीडिंग लिखी जाती है, और वो रीडिंग एक्चुअली या मिलीलीटर में होती है या सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, या मिलीलीटर में होती है या सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। और लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट, जब कभी भी आप इसके अंदर वॉल्यूम या पानी को ऐड करते हैं, पानी को इसके अंदर डालते हैं, तो वॉल्यूम इसका कहाँ से नोट करेंगे? वॉल्यूम स्केल के ऊपर जहाँ तक पानी इसके अंदर आएगा, तो हम उस स्केल की मदद से, बाहर स्केल की मदद से इसके वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जाने, फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जाने से पहले मैं एक बार फिर 3 पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. Second, it is made up of plastic or glass which has vertical scale in ml or centimeter cube, and we know that 1 ml is equal to 1 centimeter cubic centimeter. Is that clear? When a liquid is poured in the cylinder, the volume is read from the scale on site. वॉल्यूम को आपके स्केल से नोट करेंगे ऑन साइट। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सरफेस ऑफ लिक्विड कर्व वेयर इट टचेज इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड मेनिस्कस। बच्चों, लिक्विड का वो सरफेस जो आपके पास सिलेंडर को इनसाइडली टच कर रहा हो, लिक्विड का वो सरफेस जो आपके पास सिलेंडर को इनसाइडली टच कर रहा हो, उसको कहते हैं बच्चों मेनिस्कस। व्हाट? द सरफेस ऑफ लिक्विड कर्व, लिक्विड सरफेस का वो कर्व वेयर इट टचेज इनसाइड द सिलेंडर, जहाँ पे वो सिलेंडर को इनसाइडली टच कर रहा हो, उसको हम कहते हैं मेनिस्कस। और वॉल्यूम आपने कहाँ से नोट करने? वॉल्यूम आपने मेनिस्कस को सामने देखते हुए आपने क्या करना है? उस वॉल्यूम को नोट करना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम लिक्विड ये ब्लू कलर का मैंने आपको शो किए हुए। अब इसमें मेनिस्कस कौन सा पार्ट हो चुका? एक तो ये लिक्विड जो है वॉल को टच कर रहा है ऊपर से, और यहाँ सेंटर से टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जहाँ से ये इनसाइडली लिक्विड जो है इनसाइडली आपके पास सिलेंडर को टच कर रहा है, तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा? इस पार्ट को मैं बोलूँगा मेनिस्कस। और मेनिस्कस वॉल्यूम को नोट करते वक्त आपने बिल्कुल मेनिस्कस को सामने से देखना है, यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से नहीं देखना, या नीचे से नहीं देखना, तो आपके पास गलत रीडिंग आ सकती है। तो आपने डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मेनिस्कस से देखना है। इन ऑर्डर टू नोट द वॉल्यूम, you should note in front of meniscus of a liquid. So this is all about measuring cylinder. Now come to the next that are very important, that is called measuring flask. What is measuring flask? measuring flask की डायग्राम स्टूडेंट आपके बुक के अंदर गिवन है 8.7 फिगर में और पेज नंबर 100 पर, तो आप वहाँ से इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है? ये भी आपके पास लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये स्पेशली आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं। और ये भी आपके पास ग्लास या आपके पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वगैरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास और या प्लास्टिक वगैरह से बनाया जाता है।
और इसके नेक के ऊपर आपके पास एक निशान होता है। उस निशान तक आप फिल करेंगे तो आपके पास जितना उस निशान तक फिल करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इससे ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे 10 ml चाहिए तो मैं इससे मेजर कर सकता हूँ। इनकी एग्जैक्ट अमाउंट होती है कि आप इसकी लेट सपोज नेक तक इसको फिल करेंगे तो इसके अंदर 25 ml आएगा, या इसके अंदर हम 100 ml आएगा, या 250। ये डिपेंड करते हैं उसके साइज़ पर। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, 25 ml वाले भी होते हैं, 100 ml वाले भी होते हैं, 250 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं। तो मैं आपको, आप बुक से इसकी डायग्राम देखकर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट, ये कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि चलिए मैं आपको यहाँ बुक से ही बता देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट बुक में देख सकते हैं कि आपके पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, जिसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं, या इस नेक तक इसको फिल करेंगे और इसके ऊपर 1000 लिखा गया है। इट्स मीन टू से दे कि आप यहाँ तक इसको फिल करेंगे तब इसके अंदर 1000 ml आ जाएगा। ठीक है, इससे छोटे होते हैं उसके ऊपर 50 ml 100 ml लिखा होगा तो नेक तक फिल करेंगे 100 आ जाएगा। इससे भी छोटे होते हैं तो उसको नेक तक फिल करेंगे 25 ml इसके अंदर आ जाएगा। तो आई होप आप क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपके पास एक ऐसे मेजरिंग फ्लास्क होते हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का वॉल्यूम नहीं ले सकते, बल्कि इसमें आपने वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेनी होती है जो इस बॉटल के अंदर फिक्स आ सकती हैं। सो measuring flask is used to measure the volume of liquid used in science laboratory। याद रखने, साइंस लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं। ये भी प्लास्टिक या ग्लास से बनाए जाते हैं और इसके नेक के ऊपर एक निशान होता है, मार्क होते हैं। उस निशान तक आप इसको जब बढ़ते हैं, इसका वॉल्यूम जितना इसके ऊपर लिखा होता है वहाँ तक फिल हो जाता है। You can take volume in specific amount which is written on the flask, that is 225 ml to 1000 ml तक आप इसके डिफरेंट फ्लास्क आपको अवेलेबल हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड पिपेट। व्हाट प्रोनाउंस इट? पिपेट। पिपेट्स भी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का वॉल्यूम इसके अंदर लेते हैं जो स्टूडेंट जो या एसिडिक हों या आपके पास अल्कलीज हों, ऐसे केमिकल जिनको हम हाथ से टच ना कर सकते हों, उन केमिकल्स को छोटे अमाउंट में अगर आपको लेना हो तो आप पिपेट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 ml एसिड चाहिए तो मैं पिपेट यूज़ करूँगा, या 20 ml चाहिए या 10 ml चाहिए। कम अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर मुझे चाहिए और ऐसे केमिकल जिसको मैं टच नहीं कर सकता, उनको लेने के लिए हम पिपेट यूज़ करते हैं। While performing practical work with acid and alkali, and you have to take little volume, about up to 20 ml pipette are used। पिपेट हमेशा कम वॉल्यूम लेने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के अमाउंट ले सकते हैं। इस पिपेट के अंदर लेट सपोज 20 ml तक आ सकते हैं, तो 20 से कम आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 1 ml भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए। ये भी आपके पास ग्लास या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। द लिक्विड इज सक अप विथ द रिक्वायर्ड लेवल विथ द हेल्प ऑफ पिपेट फिलर। अब इस पिपेट के ऊपर एक प्लास्टिक सा रबड़ होता है जिसको आप दबाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इससे ले सकते हैं। उस प्लास्टिक का जो आपके पास एक्चुअली जो प्लास्टिक का जो रबड़ सा होता है उसको कहते हैं पिपेट फिलर, जिसकी मदद से आप लिक्विड को सक करते हैं। द लिक्विड इज सक अप टू रिक्वायर्ड लेवल विथ द हेल्प ऑफ पिपेट फिलर। पिपेट फिलर आपके पास एक रबड़ सा होता है, रेड कलर का रबड़ सा होता है, जिसको आप दबाते हैं तो अपनी मर्ज़ी का वॉल्यूम क्या करते हैं, इसमें से उस लिक्विड में से आप उठा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट। सो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस।
Prefixes are the word or letter added before SI units such as milli, centi, kilo, etc. The value of these prefixes are multiple and submultiple of tens. Prefixes. Uses. Use of prefixes. Prefixes are used to express very large or small quantities. Similarly, prefixes are used for the conversion of smaller unit and bigger unit. Examples of prefixes. When the prefix kilo is added before a unit, its value is increased by 1000. When prefix centi is added before a unit, its value is decreased by 1 divided by 100. When prefix milli is added before a unit, its value is decreased by 1 divided by 1000 part. Next, conversion. Let's suppose if I want to convert 1 kilometer, so I use the prefixes of kilo 1000 to convert kilometer into meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Like when I convert 1 centimeter into meter, I use the prefix of centi, that is 1 divided by 100 into meter. Is that clear? Now fifth point, instrument for measurement. There are following instruments which we are using in our daily life. First one, meter ruler. Meter ruler is used to measure the length of object. Meter ruler has 1000 small division called millimeters. Second, measuring cylinder. Measuring cylinder is used to measure the volume of liquid. It is made up of transparent glass or plastic which has vertical scale in millimeters or cubic centimeter. The surface of liquid curves upward at the point where it touches the inside of cylinder is called meniscus, and the volume is noted on the scale in front of meniscus of liquid. Is that clear? Measuring flask. Measuring flask is used to measure the volume of liquid in science laboratory. Measuring flasks are made up of fine plastic or glass, and a mark at the neck tells the volume. You can take volume only in specific amount which is written on the flask. And the last one is pipette. While performing practical work, acid and alkalis, and you have to take a little volume of acid or alkali, up to 20 ml pipette are used. So this is all about the instrument of measurement. Student, I hope all main point is clear now. So come to the homework. स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि आपने सबसे पहले व्हाट इज़ मेनिस्कस, मेनिस्कस क्या होता है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होता है, और थर्ड क्वेश्चन कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड मिलीमीटर. इन तीनों क्वेश्चन के आपने आंसर लिखने हैं. और स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बोर्ड के लिए आपने क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर में याद रखने हैं, दैट आर व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होते हैं, मेनिस्कस क्या होता है, इसके बारे में इसको आपने याद रखना है. ये जो आपको होमवर्क मैंने दिए हैं इसको भी आपने याद भी करना है. इसी से मोस्टली आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं. तो स्टूडेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि जो आपको इससे पहले भी इंस्ट्रक्शन मैं देता रहा हूँ कि जो आपने सेकंड टर्म का हमने आपको होमवर्क दिया था, तो आपने इसको जमा करवाना था. अभी तक कुछ स्टूडेंट ने जमा करवा दिए लेकिन कुछ ने नहीं जमा करवाया. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने इसको सेकंड टर्म का जो होमवर्क आपको गिवन था उसको आपने नीट कॉपी पे करना है. इसके अलावा जो ऑनलाइन होमवर्क आपको मिलता है तो उसको आप किसी भी रफ पेजेस के ऊपर, पेपर्स के ऊपर करके सबमिट करवाएं. तो स्टूडेंट, आई होप आप इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करेंगे और होमवर्क भी टाइम पे जमा करवा देंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.